Right, guys, we are starting with our chapter, same chapter which we had left in between. We are starting with that. Okay, so class 8 science is what we are doing. Chapter 11, force and pressure. Huh. Yeah, Ritu, can you hear me now? हम्म, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है लोगों को? श्रेया, सर can you hear आ me? रही है सर इट इज ऑडिबल Audible, okay. Yes, sir. Right. I'm sharing the notes. Just tell me the guys, all those people who have not read it in the last 2 days, not read. All those who have not read, please tell me. Shiv, good evening. शिव से शुरू करते हैं रीडिंग का काम. ओके, सो जिया ने नहीं पढ़ा, अर्शन ने नहीं पढ़ा, शिव को मैं पढ़ाऊंगा अभी. प्रभुगुण नॉट रेड. चलो आप लोगों से शुरू करते हैं. नॉट रेड, नॉट रेड, नॉट रेड. ओहो, ठीक है. राइट गाइस, लेट्स जिया, let's start with Jia. Just remember the sequence, please. ओके Jia, सर Arshia, Prabgun, Sia, Shiv Chaudhary, and Arnav. Right, guys. ये हो रही है sharing, and let us start. This chapter is basically for your fundamental for your class 9 and 10. Yeah. Okay. So we have learned what is force. Force is always either push or a pull. Force is always there when the two bodies interact. ये अलग बात है कि कांटेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता. कांटेक्ट फोर्स में कांटेक्ट जरूरी है. मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शनल फ्रिक्शन फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं. ग्रेविटी हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ और मैग्नेट हुआ. इसमें कांटेक्ट की मैग्नेट जरूरत नहीं. राइट गाइस, हो गया हो गया हो गया. एक्सप्लोरिंग फोर्स को एक्सप्लोर करा, ठीक है. नेट फोर्स जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. 5 और 6 थिंग वी हैव डिस्कस. क्या क्या हो सकता है? रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, चेंज डायरेक्शन, चेंज स्पीड, चेंज बोथ ऑफ देम, चेंज शेप. फोर्स कैन चेंज द शेप. हेलो मैम, अभिनव इज नॉट इन द क्लास. अभिनव, मैं कॉल कर रही हूँ सर. जी मैम. फिर मैं बाहर हूँ. ओके. राइट. देन वी हैव सीन के कैसे उसकी शेप चेंज कर सकता है. ठीक है भैया. ऑलराइट. देन वी सॉ के फोर्सेस कैन डू दिस टाइप ऑफ फोर्सेस देख लिए थे. फ्रिक्शन देख लिया, मैग्नेटिक फोर्स देख लिया. डन 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 डन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी हमने बात कर ली थी. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्टैटिक चार्ज. यार ये हमने पढ़ तो लिया ना, ये नहीं पढ़ा अभी तक. सिया, जिया बताओ भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आई थिंक नो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पढ़ा. यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा था. 24 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. चलो यहाँ से शुरू करो 22 से. जिया सर थोड़ा बड़ा जल्दी. कर दिया. हाँ जिया, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, पंड करना, खत्म करना है चैप्टर ये हमें. और कल मेरे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू करा, मंडे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू करूंगा. ओके उसके सर. बाद मैथ, उसके Types बाद of forces. Yeah. There are different types of forces which are categorized into two groups. In other words, contact forces and non-contact forces. Contact forces. Contact forces are those forces which come in action only when two objects are in natural contact with each other. In other words, contact forces are the type of forces in which one object physically touches another object. These forces are further divided into two groups. In other words, muscular force and frictional force. Muscular force. Assume a boy is hanging from rooftop and crying for help. So as to save the boy, we need to pull him upward from the rooftop. In order to perform this, a force is exerted by muscles of our arm. In some manner, when a football player kicks the football, then a force is exerted by muscles of player's leg.
So the force which results due to the action of muscles is called muscular force. Both human beings and animals exert muscular force to do some work. We use muscular force in our daily life activities like walking, jumping, climbing, stretching, squeezing, etc. To perform all the activities involving movement or bending of body parts, muscular force plays an important role. The muscular force also acts inside our body to perform various necessary functions required for our survival. In the process of digestion, the food gets pushed down through the alimentary canal, which involves muscular force. During breathing, the muscular force enables our legs, our lungs to expand and contract, while we inhale or exhale air. Many animals exert muscular force to do heavy works like pulling cart, blowing, and carrying heavy load. Since muscular force can be exerted on an object if and only if the body is in contact with object, thus a muscular force is a contact force. ओके गाइस, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, वंश वंश को पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन. वंश, टू टेल मी व्हाई इज दिस दैट व्हाइल वॉकिंग हाउ डू वी नीड मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स कहाँ यूज कर रहे हैं चलते वक्त? वॉक कर रहे हैं तो कोई बोल सर रहा है कि जब हम हाथ, कोई बोला कि हाथ चला रहे हैं, चलो हाथ भी नहीं चला रहे, ऐसे करके चल रहे हैं बिल्कुल. हाँ. सर जब हम वॉक करते हैं तो हमारी बोन मूव होती है, तो बोन को मूव करने के लिए हमें मस्कुलर फोर्स चाहिए. ओके. सिया, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कि हम चल रहे हैं तो कहाँ मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा सर हमारे काव्स में. है? आई एम लुकिंग फॉर ए बेटर आंसर. शिव, आप बता सकते हैं कुछ? तस्मिया, तस्मिया तो है नहीं अभी क्लास में. प्रभगुण, कहाँ फोर्स यूज हो रहा है जब हम चल रहे हैं यार? कैसे मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है? कौन बताएगा? Sir, can I? ओके अर्णव, गो अहेड अर्णव. Yes, sir. Sir, when we walk, the ground also applies force on us. So, equal force on us. So, to overcome that, we use our muscles to walk. Yeah, okay guys, let's see what सर happens आपकी is स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है. वॉकिंग में हम क्या, हमारे साथ क्या हो रहा है जो आपने अर्णव बोला है. एक्चुअली यू टोल्ड मी द लेटर हाफ ऑफ द मैटर, फर्स्ट हाफ छोड़ दिया आपने. सो वॉकिंग के टाइम पे क्या हो रहा है दोस्त? व्हेन वी आर वॉकिंग, द गाय इज वॉकिंग हियर लाइक दिस, so his feet are pushing the ground. Now to push the ground, my muscles need to apply force on the ground. In turn, ground will apply force upwards. In turn, ground will apply force upwards, and we will be able to move this leg. गुड This इवनिंग leg we सर. will be able to. सर एक्चुअली Correct. सर बिकॉज ऑफ द रेन आई कुड नॉट कम. सर मैं बाहर था और सर बहुत तेज बारिश हो रही है इधर सर दिल्ली में. अच्छा, तेज बारिश है क्या? तो चलो ठीक, कोई बात यस नहीं, सर. अभी जज कर लिया, अभी जस्ट स्टार्टेड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू. ओके, तो हम नीचे, हम जमीन को, अच्छा अगर मेरे को दौड़ना है तो मुझे और जोर से पैर फोर्स लगाना पड़ेगा. जंप, हाई जंप करना है, और जोर से प्रेशर मारूंगा. जितना जोर से फोर्स लगेगा उतने जोर से मैं जंप कर पाऊंगा. राइट, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ रेन्स दैट लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग द नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके यार, ऋत्विक इज आल्सो बीन ट्राइंग हार्ड. ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. आई थिंक आफ्टर जिया इट वाज अर्श, Arshia. Arshia, go ahead, please. Sir, can I read after Prabhu? ओके 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 ओके. अभी किसका है? जिया, अर्शिया के, कौन था अर्शिया के बाद? प्रभगन. प्रभगुण, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़े आप. Yes, sir. Frictional force. If we stop pedaling a bicycle, then it gradually slows down and stops after covering some distance. Similarly, a car comes to a rest once its engine is switched off. Even a boat moving in water comes to rest if we stop rowing it. So, in all these cases, no force appears to be acting on the object. But still, their speed gradually decreases and they come to rest after some time. We conclude that an opposing force is acting in all the cases which slows down their motion. So, the force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force or friction. Take an Okay. example where Yeah. a man tries to pull a heavy box and the box moves slowly.
It is due to frictional force, which acts opposite to the force applied. Therefore, frictional force always acts on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. So, we can say that force of friction arises only when two objects are in contact. Thus, frictional force is a contact force. Okay, so just हमने फ्रिक्शन काफी डिटेल में किया था. Just two things I want to tell you about friction. So friction will only be applied in two conditions. अगर ये कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल नहीं होगी तो नहीं लगेगा. पहली कंडीशन क्या है? कॉन्टैक्ट. दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट. अगर 1 mm का भी फर्क है बीच में तो इट नॉट वर्क. सो कॉन्टैक्ट इज अ मस्ट. एंड सेकेंडली रिलेटिव मोशन इज अ मस्ट. दोनों चीजों के बीच में रिलेटिव. अच्छा तुम ये बता दो रिलेटिव मोशन क्या होता है. देखो सपोज करो आप एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन 80 kmph की स्पीड से जा रही है और उसी ट्रेन का रिलेटिव मोशन का मेरे को लग नहीं रहा क्या बोलूं. मतलब बेसिकली देयर हैव टू बी मोशन बिटवीन देम इन द सेंस लेट्स से ट्रेडमिल चल रही है एक और इसी ट्रेडमिल पे एक रिलेटिव मोशन. मतलब ये समझो कि दोनों चीजें अगर एक साथ चल रही है, ये 80 पे चल रहा है, ये भी 80 पे चल रही है, दोनों ऐसे चल रही हैं 80 पे दोनों. ये एक अलग कुछ है ऑब्जेक्ट है, कुछ अलग ऑब्जेक्ट है, मुझे भी याद नहीं रहा. आई विल टेल यू लेटर. सो दिस मूविंग एट 80, दिस इज आल्सो मूविंग एट 80. तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन होता है कि इनके फर्क होना चाहिए थोड़ा. इफ इट इज मूविंग एट 80 एंड अदर ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम दिस साइड अपोजिट डायरेक्शन से, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? इन दोनों का ऐड हो जाती है स्पीड अपोजिट डायरेक्शन. सपोज यू आर रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल. एक ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हो Good और evening, ट्रेडमिल sir. चल रही है. वो हाय गुड इवनिंग. कहाँ रह जाती है तू? Sir, I was not at home and it started raining, so it made me late. ओके चलो ज्यादा नहीं मिस किया. वीडियो देखना ध्यान से. 10 kmph से चल रही है आपकी ट्रेडमिल और आप दौड़ना शुरू करो 12 kmph से या फिर 8 kmph से दौड़ोगे तो आपके और उसके बीच में फर्क हो जाएगा 2 किलोमीटर का. वो आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाओगे 2 kmph. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली फ्रिक्शन के अंदर दो कंडीशंस मस्ट हैं. एक तो कांटेक्ट होना चाहिए और रिलेटिव मोशन होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तभी फ्रिक्शन काम करेगा. प्रभु कंटिन्यू करें. आई एम जस्ट शेयरिंग. यस ओके. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. प्रभु जस्ट रीड वन मोर पॉइंट प्लीज. Okay, sir. Non-contact forces. Non-contact forces are those forces which come into action without any contact with 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 one one another. another. In other words, we can say that for non-contact forces, there is no physical touch between the objects. Example: magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. ओके होल्ड Magnetic करना. force. चलो ओके रीड वन मोर पॉइंट प्लीज. मैग्नेटिक फोर्स. Magnetic force. Since a magnet exerts a force of attraction on objects like iron, nickel, and cobalt, so in case if we bring a magnet near iron pins, then the magnet pulls them towards itself. The force exerted by magnet is called magnet force. So we have seen that as we bring a magnet slowly near some iron pins, then at a certain small distance, the iron pins suddenly jump towards the magnet and stick to it. It is a fact that a magnet can exert a force of attraction even without touching them. Thus, magnetic force is a non contact नॉन force. कांटेक्ट फोर्स. ओके आप होल्ड करें. राइट आई थिंक इसके बाद सिया अर्षा टेल मी व्हेन यू आर कंफर्टेबल रीडिंग. Yes, sir, I am comfortable. ओके ओके अर्षा गो अहेड. पॉइंट नंबर Yes, 29. sir. As we know that magnet also exerts a magnetic force on another magnet placed near it. This force can be either attractive or repulsive. For like poles facing towards each other, there is force of repulsion, while unlike poles facing each other, there is a force of attraction. Let us discuss the following activity which make it more clear. Okay guys, before you go ahead, I have a question for you. I'm putting in the chat box. Give me the answer. I think it's very easy.
It'll get your brain working little more. Yeah, which is the force which can only have attraction? सर लाइन नहीं भेजी थी लेकिन मैंने आंसर भेज दिया. ओके, चलो ठीक है. ओके, बाकी लोग डाल दें दोस्तों. ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है. सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है. लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है. एक्चुअली जब कॉस्मोस की थ्योरी को साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, एक टाइम पे उनके दिमाग में ये भी बात थी कि ग्रेविटेशन फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो सकता है. बहुत अलग थ्योरी है वो, किसी दिन डिस्कस करेंगे हम आपसे कि हाउ 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 व्हाट ऑल इज देयर, हाउ ये सब एस्ट्रोफिजिक्स करते हैं. जैसे एक दिन बात हो रही थी, तो उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं. एक टाइम पे ऐसा लगता था, लेकिन नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड द ग्रेविटेशन फोर्स कैन ओनली बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चलो आगे बढ़ते हैं. अर्षा आप कंटिन्यू करें. ऋत्विक, कैन यू स्टिल कैन नॉट हियर मी? ऋत्विक, सर कैन यू हियर मी? हाँ 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 हाँ. अब मैं कह यस. रहा हूँ भाई, आपसे शिकायत है हमें. क्या सर? कल तुमने क्लास नहीं अटेंड करी, तो कम से कम मुझे मैसेज तो कर देते यार. मेरे को तुम्हारा इतना कंसर्न रहता है कि मेरे एक भी स्टूडेंट क्लास मिस ना हो. तो कम से कम मैं टाइम तो नहीं वेस्ट करूंगा ना फिर फोन करने में, तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा. सॉरी सर. क्यों? सर मैसेज गया था सर, मैं बाहर था ना, तो सर मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था. अरे यार, मैसेज का तो नेटवर्क आ गया होगा कम से कम इतना कि सर टुडे आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द सर क्लास. मैंने तो मैसेज करके रखा था सर. जब भी नेटवर्क आता है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है सर. वो भी नहीं हुआ. अरे ऐसा कहाँ चले गए थे तुम? नागालैंड साइड गए थे क्या? नहीं सर. सर बाहर यहीं गया था सर, जगत फार्म तक. यार तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है फिर उसमें. मैं ये रिक्वेस्ट करूँ, जिसको क्लास नहीं अटेंड करे किसी वजह से, बिफोर 4 o'clock प्लीज ट्राई एंड सेंड मी द मैसेज, बिकॉज 4 o'clock सर के आई बाद हैव मेरी वन क्लासेस डाउट. शुरू हो जाती है. हाँ जी हाँ, 4 o'clock क्लास शुरू हो जाती है यार, उसके बाद मैं देख नहीं पाता हूँ. हाँ यस. सर जी हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. हाँ कोई बात. गो गो. सर व्हाई डज गैलियन स्टार्ट मेल्टिंग ऑन आवर palm? गैलियम. यस सर. Yeah, because gallium at room temperature, it has a very low melting point. It has a very low melting ओके point. सर. बहुत सारी है, जैसे जैसे ब्रोमीन है. It is यस सर, it is नॉन gaseous at मेटल. the room temperature. ठीक है. बहुत सारे पेट्रोलियम है, जैसे पेट्रोल है. It is slightly higher than the room temperature. -29 degree पे start vaporizing. बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे just something to do with the boiling point and melting point. As simple as that. ओके No great सर. work in that. ओके, अर्षा मैं शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें. यार ध्यान ध्यान रखना इस बात को थोड़ा, जो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा प्लीज सेंड मी मैसेज. इतना डिसिप्लिन तुम लोगों के अंदर मैं चाहता हूँ कि आ जाए. सिविल में कोई नहीं केयर करता, बट आर्मी में हम लोग बहुत इस बात को करते हैं कि नहीं जा पा रहे हैं तो टाइम से मैसेज चला जाए, ये सब चला जाए. आई वांट कि ये आपके अंदर भी इनकलकेट हो जाए. विल बी कॉज फॉर योर सक्सेस टुमारो. विल बी वन ऑफ द रीजंस फॉर योर सक्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अर्षा. Electrostatic force, the fundamental property of matter which takes part in electric and magnetic effects, is electric charge. As the charges of two types, that is positive and negative, so the term electrostatic refers to the stationary electric charges. An object having stationary electric charge on it is called electrically charged object. Force exerted by an electrically charged object is called electrostatic force, which can be either attractive or repulsive. So, in order to understand this concept more clear, let us perform an activity. Okay, I before we go ahead, I just want to explain one part to you. बार बार वर्ड आ रहा है स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक. स्टैटिक क्या? एक्चुअली में तो लोग स्टैटिक चार्ज भी नहीं बोलते, ये बोलते यार आज मेरे को स्टैटिक लगा ऐसे बोलते. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फॉर दैट मैटर? स्टैटिक तो एक होता ही है, नॉन स्टैटिक कुछ नहीं होता. नॉन स्टैटिक कुछ नहीं होता, दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं करंट. So let us say you have a positive terminal here in the battery and a negative terminal here in the battery. These are your terminals, right? And these are connected like this. This is a cell, let's say. So there are more electrons here
and there are less electrons here. Since electrons are negative, electron carries a negative charge. Negative is a 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, and it is negative. Okay. Similarly, प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, करंट तो कोई फ्लो नहीं होती. एक साइंस में कन्वेंशन है, हम हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो जा रही है, करंट जा रही है. इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन पहले हो गया था, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी बाद में हुआ था, तो उस वजह से साइंटिस्ट ने फिर उसको चेंज नहीं किया कभी भी, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही माना जाता है. ओके, सो दिस इज करंट. व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक दोस्तों वो है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक ही बॉडी एक बॉडी, जैसे हम लोग ले लेते हैं ड्राई प्लास्टिक स्केल और इसको ले लें ये पेपर के पीसेस, पेपर पीसेस, इसको हम ड्राई हेयर में रब कर लें, तो इट विल लूज सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन विल पास टू हेयर. तो दिस विल बिकम पॉजिटिव. नाउ कल भी मैंने समझाया था कि पेपर पे आपने कुछ नहीं किया, तो तुम बोलोगे सर पेपर नेगेटिव कैसे होगा? पेपर नेगेटिव नहीं होगा, पर जो पेपर का जो भी पार्ट इसके पास लेके आओगे तुम लोग, जो पार्ट्स लेके आओगे, उसके अंदर जो पार्ट इसकी तरफ है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और प्रोटॉन्स पीछे पुश हो जाएंगे. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, नाउ दिस नेगेटिव विल गो. सो in this the charges are not moving, electrons are not moving, electrons are static at one place, so therefore it is called static current, static current or static electricity. Okay, yeah, अर्षा कहाँ तक पढ़ा था? ओके, अर्षा के बाद मेरे ख्याल से सिया की चांस थी. सिया आप पढ़े. या ये Yes, सब sir. कर दिया इन्होंने, नेक्स्ट स्टेप करके करा के हो सके पेपर को कर दे. ये 33 पॉइंट नंबर 33. Yes, sir. Now consider another example. When a plastic comb is rubbed in dry hair, the comb gets electric charges by friction. And if this electrically charged comb is brought near small pieces of paper, then it exerts an electrostatic force of attraction on them. So, from these examples, we can conclude that the electrostatic force of interaction can be exerted by a charged body on another charged or uncharged body, even if they are not in touch with each other. Therefore, electrostatic force is an example of non contact force. Okay, and the third type is gravitational force. So the gravitational force is universal in this application. सारे force universal है. Gravitational force applicable in the universal के छोटी से छोटी body, ये mouse है ऐसे और ये pen है इधर, these have gravitational pull towards each other. But क्योंकि gravitational constant की value बहुत कम होती है, 10 to the power minus 11 होती है, वो force इतना कम होता है, it is almost negligible, it can't be felt unless the bodies which are in question, which are being considered, or huge bodies like earth and moon and sun, like that, तब gravitation force की value बहुत ज्यादा हो जाती है, and as a result of that earth keeps on rotating around the sun. Go ahead, Sia, please. Yes, sir. Gravitational force. Since each and everybody in the universe attract every other body with a certain force, and this force is called gravitational force. As we know that the earth revolves around the sun in an orbit, and it is due to gravitational force of attraction between them. So, in this case, if we release a small stone from some height, then it falls down towards the earth. It is due to reason that the earth exerts an attractive force on the stone and pulls it down. The force with which the earth attracts the object towards it is called force of gravity or simply gravity, which causes all the objects to fall towards earth. As the gravitational pull acts on objects even if they are not in actual contact, therefore, the gravitational force is a non-contact force. Note, like the Earth, other planets also attract the object towards it. In that case, the term gravity is the attractive force on the objects nearby towards the planet. Okay, एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ यहाँ पे. ये बुक के अंदर जो लिखा हुआ है थोड़ा सा वो
अनक्लियर है सर और डाउट इनकरेक्ट भी है। अभिनव 1 मिनट होल्ड करना, देखो वर्ड ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के लिए यूज होता है, बाकी जो प्लैनेट्स है जो फोर्स करते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। एक मूवी है इस नाम की, $200 मिलियन में बनी थी वो, आई थिंक उसमें वो है सलमा हायक है शायद से हीरोइन उसकी, सलमा है क्या कोई और है सर, ग्रेविटी नाम की फोर्स है। तो ग्रेविटी वो हॉलीवुड की मूवी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। हाँ, जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है हम उसको ग्रेविटी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मून्स ग्रेविटेशन फोर्स। ओनली अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रेविटी। और जितने में ये मूवी बनी है उससे थोड़े से ज्यादा पैसे में हम लोगों ने मंगलयान बना दिया था। मंगलयान पर मंगल चला गया। तो इंडिया के अंदर मोदी जी जब अपनी स्पीच दी थी इस बात का मेंशन किया था कि हॉलीवुड जितने में एक पिक्चर बनाता है उतने में हमने मंगलयान को मंगल तक पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट तकरीबन। सर साइकिल में सर रॉकेट का पार्ट्स लेके गए थे सर, अब्दुल इसमें कलाम के टाइम पे। सर जब वो साइंटिस्ट था तो सर साइकिल में सर पार्ट्स लेके गए थे। हाँ, साइकिल में पार्ट्स लेके जाते थे, वो तो मूवी में दिखाया था। हाँ अभिनव, व्हाट इज योर डाउट? सर सर 1 सेकंड सर। राइट। सर सर इसके बाद अर्नव विल रीड आफ्टर दिस एंड देन शिव। या अभिनव। सर सर न्यूटन सर उसको सर और भी सर ग्रेविटी के सर उसने बहुत कुछ देखा होगा, ग्रेविटी के जो ग्रेविटी यूज हो रहा है जिस चीजों में सर, तो उसको जब वो एप्पल उसके सर पे गिरा या एप्पल उसको गिरा सर, तो उसी टाइम उसको ऐसा क्यों लगा? मतलब देखो उसका तो कहते हैं कि कोई भी आइडिया एकदम से स्ट्राइक नहीं होता। ही वाज वर्किंग, ही हैड रेड अबाउट 3 साइंटिस्ट आई टोल्ड यू दैट डे, केपलर, कॉर्निकस एंड गैलीलियो गैलीली। ये 3 साइंटिस्ट ने पहले काम कर रखा था प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर, और ये थ्योरी चल रही थी सबकी सब। ही वाज स्टडीइंग ऑल ऑफ दी एंड देन it is said that he was sitting in a garden and he was, सारे साइंटिस्ट कॉन्टेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं बैठ के ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। when he saw the apple falling, it is said that it was falling, he saw it falling there, so it came to the idea came to him कि why is apple going towards the earth, why not opposite to the earth, something like that. so कब आया क्यों आया इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं अभी ना, लेकिन he was already working on this and he made this statement. I think Newton has said that, or probably Einstein said this, but I think Newton had said that I stand on the shoulders of giants, that's why I am able to see so far. ये इसका स्टेटमेंट है, I'm standing on the shoulders of giants. giants कौन कौन थे? गैलीलियो गैलीली, जिसने कि टेलीस्कोप किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। कॉर्पोनिकस, उसका मेरे को राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, बोलेंगे कॉर्पोनिकस नाम था साइंटिस्ट का, और एक था केपलर। 3 साइंटिस्ट का काम उसने पढ़ा, उसके बाद उसने ये रूल्स बनाए थे अपने 3 ग्रेविटी के, मतलब 3 लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी के नहीं, 3 लॉज ऑफ मोशन, वो अलग है, ग्रेविटी अलग है। या अर्नव प्लीज यहाँ से आगे चले थोड़ा, ये गो अहेड। अच्छा चेक पॉइंट पढ़ लेते हैं यार, मैं पढ़ रहा हूँ चेक पॉइंट। नेम 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस। यस एनीवन? नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, वेल डन। या एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट मस्कुलर फोर्स अलोंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने समझा दिया था। व्हेन वी आर वॉकिंग, we are pushing the ground is pushing. Let's say you are playing with your friends and you push your friend, that is a muscular force. Explain the situation when does the repulsion occur or for 2 charges. Repulsion occur for 2 charges, what can it be? So if you have to negatively everyday life में कोई है इसका example, anybody remembers? everyday life में 2 forces और 2 charges, सेम चार्जेस का देखना सर जब पड़ेगा। हम 2 मैग्नेट के पोल को एक साथ लाते हैं, मतलब सेम मैग्नेट चार्जेस की बात कर रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव। ओके, सो अभी नहीं मेरे को याद आ रहा, बाद में बताऊंगा। is it compulsory that non-contact forces having both the properties attraction repulsion? No, because gravitation one force which only has attraction. Write the force with which the earth attracts the objects. Gravitational force. It is called gravitation force of earth or gravity.
Okay guys, now before I go ahead, I just want to explain the pressure to you. So होता क्या है, अगर तुम किसी दलदल दलदल मार्शी एरिया के अंदर हो, और मार्शी एरिया के अंदर, नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रेशर, मार्शी एरिया के अंदर हो आप, ऐसा कहा जाता है कि अगर मार्शी एरिया में आप खड़े हो और आप नीचे की तरफ डूब रहे हो, तो आप लेट जाओ इधर, आप डूबोगे नहीं, यू विल सर्वाइव, you lie down like this and keep on trying to push yourself out of it. That is, जो हमारे टैंक्स होते हैं, टैंक्स के नीचे एक ऐसा ट्रैक बनाया जाता है, क्योंकि टैंक्स का वेट बहुत ज्यादा होता है, उसमें गन वन लगी रहती है, वो व्हील नहीं बनाए जाते, ट्रैक बनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि इसका जो ट्रैक का एरिया है वो इतना ज्यादा होता है कि टैंक का जो वेट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता पूरे ग्राउंड पे, एक जगह टायर होते तो धंस जाता जमीन में। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सपोज करो आपको किसी मडी इलाके में जाना है, मडी इलाके के अंदर आप क्या है, ब्रॉड शूज पहन के जाओगे या हाई हील पहन के जाओगे भैया? ब्रॉड शूज, क्योंकि उनका ब्रॉड शूज। एरिया जो ज्यादा हाई है हील तो पहनोगे तो प्रेशर। पॉइंटेड हील जो है उसका पूरा का पूरा प्रेशर इधर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, वो जमीन के अंदर धंस जाएगी। वी वांट अ शू व्हिच कैन टेक आवर वेट एंड अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। प्रेशर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कार वॉश कर रहे हो, पाइप के अंदर पानी कम आ रहा है, आप क्या करो, उसको एरिया को कम कर दो, उसको पाइप को दबा लो साइड से, तो जो उसका प्रेशर है ना, पानी का फोर्स तो वही रहेगा, फोर्स वही है जो पहले था, टैप में से उसी फोर्स से पानी आ रहा है, लेकिन आपने एरिया कम करने के लिए उसका प्रेशर बढ़ा दिया। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। और नाउ काइंडली टेक ऑन फ्रॉम हियर। क्या प्रेशर? ओके, और इसका वो क्या ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? ऐसा यूनिट इज पैस्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सर न्यूटन आपकी पर स्क्रीन मीटर प्रेजेंट हो। स्क्वायर, हाँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, पीए। इट इज नेम आफ्टर ए फ्रेंच साइंटिस्ट। अच्छा, ये ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं होता, आई थिंक उनका नाम पूरा लुइस पास्कल था, ऐसा कुछ था। ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्कल के नाम पे पास्कल रखा है तो पास्कल ने इसको इजाद किया होगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो साइंटिस्ट उसकी डिस्कवरी करता है उसके नाम से करते हैं, बट बहुत जगह ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि उसी बंदे ने उसको इन्वेंट किया हो। कई बार चेंज, जस्ट टू ऑनर दैट साइंटिस्ट, कई बार नाम डाल देते हैं, पर कई बार उस बंदे ने डिस्कवर किया होता है वो कॉन्सेप्ट। बोथ द थिंग्स आर देयर। शिव बी रेडी आफ्टर दिस, अर्नव के बाद आप पढ़ेंगे शिव। अर्नव। Yes, sir. Pressure. Let us assume wooden plank placed on the ground. So with the help of our thumb, if we push hard on the plank, then the thumb does not go into the wood. In another case, if we push a drawing pin into the wood with the same force of our thumb, then the drawing pin gets fixed into the wood. So we will see that our thumb does not go into the wood because the force of thumb falls on a large area while the drawing pins goes into the wood due to sharp tip of pin. It is all happened due to the fact that in first case the force per unit area pressure is small while in second case the force per unit area pressure is large. Therefore, we conclude that the pressure is the force acting on a unit area of a surface. Mathematically, pressure is defined as pressure is equal to force upon area, where area means that part of surface on which the force acts and SI unit of pressure is Pascal. 1 Pascal is equal to 1 Newton न्यूटन पर मीटर per meter. स्क्वायर। एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। एक मिनट, मेरे को देखा कितना बच्चा है, थोड़ा सा मेरे को उसको पढ़ाना है। शिव, अर्नव एक मिनट होल्ड करना, शिव को थोड़ा चांस दे रहा हूँ। शिव, आप पढ़े एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। शिव, शिव यू आर देयर, कैन यू रीड? शिव, आवाज नहीं आ रही शिव बेटा। रीजन हो जल्दी से, फटाफट लीव करके रीजन हो जल्दी।
तब तक मैं दूसरे बुक्स के नोट्स निकालता हूँ, थोड़े से उनको भी देख लेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स मैंने शेयर कर दिए तुम लोगों के साथ, इसको अभी आप लोग जो है पढ़ लेना, थोड़ा देख लेना। एक मिनट, ये हो गया। अच्छा, तुम लोगों का एक ओपिनियन भी ले लूंगा मैं इस पे। ओके, कहाँ है शिव? शिव, आई थिंक शी इज नॉट एबल टू रीड। भाई तेरी आवाज नहीं आ रही शिव, मैं तेरे को रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा से क्लास ज्वाइन कर जल्दी। शिव, हाँ, जाओ अभी आओ फटाफट। अनव, Yes, sir. अब तो तब Applications तक, of हाँ, मीन वाइल या pressure. रीड, हाँ। Applications of pressure in our daily life. First, sharp knife cuts better than a blunt knife. We can cut the vegetables, fruits, etc. with sharp knife. It is due to its very thin edge. The force of a hand falls over a very small area of object which produces a large pressure. एक On मिनट the होल्ड करना, same होल्ड करना। शिव, अभी भी आवाज नहीं आ रही, शायद से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्या माइक तो तेरा अनम्यूट अनम्यूट नहीं है? ठीक है, होल्ड कर, तेरे को बाद में चांस दूंगा। शिव, आई विल गिव यू चांस लेटर। अर्नव, गो अहेड। Yes, sir. On the same side, the blunt knife does not cut an object easily because due to its thicker edge, the force of our hand falls over a larger area of the object which produces comparatively less pressure. Also, a sharp knife can cut easily due to high pressure on the bread. ओके, ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। Yes, sir. जो Second, कुली लोग होते हैं, तुमने देखा वो गमछा बांध के ऊपर रख लेते चेयर, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर सिर्फ वो उनका टच करेगा ये हेड, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, वो कपड़ा लगाने से पूरी हेड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या Potter placed thick, round cloths on his head to carry heavy loads since we usually see some potters on railway stations who carry the heavy loads of passengers. So, placing the thick round piece of cloth on their head, the potter increases the area of contact of load with their head. Now the load falls on large area due to which the pressure on the head decreases and it becomes easier for potters to carry the load. ओके, वेट करना। दोस्तों अभी अगला बता रहा हूं मैं आपको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, दो चीजें हमें देखनी है इसके बाद इसमें। फ्लूइड्स में सबको पता दो चीजें आती हैं, वन इज गैस एंड वन इज लिक्विड। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। पहली बात, प्रेशर is directly proportional to the height of the column, height of fluid column. So अगर हम मीन सी लेवल पे बॉम्बे में है, सी के पास, तो हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, 7, आई थिंक दिस इज 786 mm ऑफ मरकरी। तो मतलब ये है कि बैरोमीटर को अगर आप वहां पे सी के पास रखोगे, बैरोमीटर ऐसा होता है, और यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है उसके अंदर, यहाँ मरकरी है उसके अंदर, मरकरी को पुश कर देगा एयर और इसको 786 mm तक चढ़ा देगी। अगर माउंट एवरेस्ट पे ले जाओगे तो वहां प्रेशर बहुत कम है, आई थिंक माउंट एवरेस्ट पे 400 mg का प्रेशर है। तो ये कैसे हो गया, माउंट एवरेस्ट पे ऐसे प्रेशर कम क्यों हो गया? दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे जो एयर कॉलम है वो इतना ऊंचा है, और यहाँ जो एयर कॉलम है वो सिर्फ इतना ऊंचा है, इतना, माउंट एवरेस्ट पे सिर्फ इतना ऊंचा है। ये वाला तो लग ही नहीं रहा पे, तो बंदा माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर तो सिर्फ इतना प्रेशर लग रहा है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। ओके, तो उसका एक तरीका, इसका अभी आगे एक्टिविटी हम ऊपर लेते हैं। उसमें दिखाया है कि एक पाइप ले लो, पाइप पे नीचे बैलून बांध दो और उसमें पानी भरना शुरू करो। अगर आपने पानी यहाँ तक भरा तो बैलून इतना बड़ा होगा, लेकिन अगर आपने ऊपर तक पानी भर दिया तो बैलून का साइज इतना हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर, पानी उस पर प्रेशर मार के उसको साइज को बड़ा कर देगा। दैट इज वन। एंड सेकेंडली, समझने वाली बात है, अगर आपने एक बैलून लिया, उसके अंदर आपने हवा डाली, तो देर आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ molecules inside and they are hitting the wall
Since there are so many of them, they are in almost infinite. So the distribution of their heating is almost equal, and that's why your balloon is in a round shape. ये नहीं होगा कि balloon यहाँ से थोड़ा सा कम फूला हुआ इधर ज्यादा ऐसे नहीं होता, because it's almost infinite number. So this is all. Nextly, the pressure exerted by fluids in the container is equal in all directions. Why? Because almost infinite number of molecules are heating in all directions. That's why it's almost equal. चलो भाई अर्नव आप ही करो अभी ये कंटिन्यू. Yes. Yes. Go ahead. Pressure exerted by liquid and Yes, gas. sir. Fluids बोलते हैं इनको. Pressure exerted by fluids. We have learned about the pressure exerted by solid. Now let us study the effects of pressure due to fluid, which can flow. Liquids and gases can flow and they are called as fluids. Pressure exerted by liquids. There are some substances like water, oil, milk, petrol, etc. are liquids which exert pressure on the bottom and walls of container. Let us assume a vessel containing liquid and the weight of the liquid pushes down the base of container which exerts a pressure. In this case, the force is the weight of liquids and the area is of the base of container. Read this activity. Yeah, Yes. 41. First of all, take a transparent glass tube having diameter 4 centimeter and length 15 centimeter. Also, choose a piece of thin sheet of rubber like rubber balloon and stretch tightly over one end of pipe. While keeping the pipe vertical, whose bottom is rubber sheet tied to it, try to some try to some water from the top end into the tube. Pour होगा, pour. Try to pour some water. Yeah, okay. We will see that the rubber sheet tied to the bottom stretches and bulges out, which shows that the water exerts a pressure at the bottom of container. Again, put some more water in the tube so that the height of the water column increases. We experienced that the bulge in the rubber sheet can also increases. So it shows that the pressure at the bottom also increases. Hence, greater is the height of the water column, greater is the pressure exerted by fluid. Finally, we have come to the conclusion that a liquid exerts pressure at the bottom of its container. The pressure exerted by a liquid depends on the height of liquid column. Okay, but it is not necessary कि सिर्फ बॉटम पे ही हो रहा है. Like I said कि चारों तरफ होता है. उसके लिए सेकंड एक्टिविटी पढ़ रहे हैं. पढ़ना. Yes, sir. Firstly, choose a plastic bottle, like soft drink bottle, and a small glass tube, few centimeter above its bottom. Strictly confirm that the water does not leak from the joint. So, if there is any leakage, then seal it with molten wax and cover the mouth of glass tube open end with a thin rubber sheet as we did in activity 7. Now fill half of the plastic bottle with water. Since Since pressure pressure है. exerted by liquid on the walls of container depends on height of liquid level from bottom. फ्रॉम बॉटम. या फ्रॉम बॉटम इसलिए बोल रहा है कि जितना आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, इसके ऊपर जो पड़ने वाला कॉलम, वो जो माउंट एवरेस्ट की तरह मैंने बताया, जितना आप ऊपर ले जाओगे इस पे जो वेट पड़ रहा है वो कम होता जाएगा. जितना नीचे रहेगा मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा उसको. या सो So we will see that the rubber sheet bulges out with which confirms that the water present in the plastic bottle exerts pressure on the wall of bottle. Now if we put more water in the bottle, then we will see that the bulge in the rubber sheet increases. This shows that the pressure exerted by water increases with the increasing height of liquid surface from bottom. From this activity also, we can conclude that a liquid exerts pressure on the walls of its container. The pressure exerted by the liquid on the walls of its container depends on the height of liquid level from bottom. Hold an ओके. empty नहीं plastic नहीं, bottle. इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते, या इसको छोड़ते नहीं है. ऋत्विक आप पढ़ो. ऋत्विक ऋत्विक तावरी 43. Yes, sir. Hold an empty plastic bottle and make four small holes of equal size all around near the bottom of the bottle. Be sure that the holes are at the same height from the bottom. Now try to fill the bottle with water. Here we will see the jets of water coming out from all the four holes, fall at the same distance from the base of the bottle.
Thus, we can conclude that liquid exerts pressure equally if they are at the same depth. सेम डेप्थ, ओके। अच्छा, इसका एक और एक, आई डोंट थिंक जिसमें दिया हुआ है, जस्ट पे अटेंशन। सो इसका एक और एक्सपेरिमेंट आता सर है, एक और स्क्रीन एक्टिविटी। प्रेजेंट हो रही है। ओके, थैंक यू। इसकी एक और एक्टिविटी आती है, उस एक्टिविटी को ऐसा दिखाया जाता है, आपने एक वाटर कंटेनर लिया, उसमें पानी भर दिया, और इसके अंदर आपने दो होल कर रखे हैं, एक होल यहाँ पे नीचे और एक कट यहाँ पे। तो इस वाले कट का जो पानी का हो जाएगा ना, स्टीम जाएगी, वो यहां तक जाएगी, और इस वाले की यहां तक जाएगी। सर उसका क्योंकि रीजन, ग्रेट डेप्थ है और ग्रेट प्रेशर होता है। उसका रीजन क्या है कि इस वाले लेवल तक आते आते इतना प्रेशर पड़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है इस पे, और यहां से इतने वाटर का प्रेशर पड़ रहा है। तो क्योंकि इस वाटर का वेट कम है, इसका फोर्स कम होगा, तो ये पानी यहां तक यहीं गिर जाएगा, और क्योंकि इसका प्रेशर यहाँ तक करा, इसका प्रेशर यहाँ तक। ये भी कई बार बुक्स के अंदर नजर आएगा आपको। ऑलराइट, या ऋत्विक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। So, screen. या ओके, गो अहेड। Yes, sir. Pressure exerted by gases. As we know that air is a mixture of gases which are made up of tiny particles called molecules. These molecules move randomly in all directions. Now consider some amount of gas in kept in a con- is now consider some amount of gas is kept in a container due to which the gas molecules collide with one another and with the walls of container. As the fast मूविंग, yes sir uh, as the fast moving molecules collide with the walls, so they exert a force on the walls which produce the air pressure or gas pressure. By mouth, take a rubber balloon on, fill air into it, so we see that the balloon inflated. इन्फ्लेटेड, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब इन्फ्लेट का मतलब फैलना, और डिफ्लेट का मतलब पिचक जाना। इन्फ्लेट मतलब बड़ा होना, डिफ्लेट छोटा होना। हाँ, It is due to the large number of air molecules which is pushed towards the balloon increases the number of collisions with the walls of balloon and create a high pressure. Therefore, air exerts pressure in all directions. okay, so it is such a strange thing, guys, just pay attention. It is such a strange thing कि बैलून के अंदर जो गैस है, वो गैस है यार, और बैलून को सॉलिड बना दिया उस बंदे ने। उस गैस ने बैलून को सॉलिड बना दिया। गैस है तो गैस तो किसके, गैस की तो कोई शेप शिप होती नहीं ना, सॉलिड की तरह बिहेव नहीं कर सकती। ये कैसे बन गया? क्योंकि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल 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 मॉलिक्यूल्स एंड दे हिटिंग दिस, constantly hitting this and exerting force on this. So as a result of this, now this thing looks like a solid. While inside there is gas, but the outside portion, because of the constant heating, appears or behave like a solid. Okay. दोस्तों, any doubts in this? बताओ, anyone? हाँ जी, No, sir, no doubt. नो डाउट्स। अभिनव, ऋत्विक, नो सर, चंदेल, अर्णव, अर्शिया, जिया, No No, doubt. sir, no रघुन, doubt. श्रिका, सिया, No, रवि। sir, no doubt. श्योर, सर नो नो डाउट। डाउट्स। No, sir, हाँ जी, no नो डाउट। doubt. गाइस, मैं कुछ ना नोट्स दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, जरा देखना एक बार इसमें, मेरे को बताना कौन से नोट्स। सारे नोट्स भेज दिए मैंने तुम्हें, बट फिर तुम क्या प्रेफर करोगे कि एक स्टूडेंट के लिए क्या, एक स्टूडेंट का क्या हुआ है। मैं अपनी पूरी स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ अभी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पूरी, या ताकि मैं फटाफट दिखा दूं तुम्हें। सो ये वाले पहले वाले, दिस वी हैव सीन, दिस वी हैव सीन, दिस इज व्हाट वी ऑल रेड। नाउ दिस इज, ये वाले हैं, ये साइंस नाउ के हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इसमें पूरा चैप्टर दे दिया और लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए। लेकिन कुछ बुक्स हमारी ऐसी हैं, मोनोमीटर और ये पूरा, अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर अलग से देने पड़ेंगे मुझे। आई हैव टू शो यू द क्वेश्चन पेपर अलग से। इसके अंदर भी ये वो लखवीर सिंह वाली है, लखमीर सिंह की बुक है, जिसके अंदर की क्वेश्चन आंसर ओ है आई थिंक क्वेश्चन आंसर है, या नहीं होंगे तो मैं खैर भेज दूंगा क्वेश्चन आंसर। ऑलराइट, फिर ये वाली है, ये इसके जैन, वो तो नोट्स तो तकरीबन बाय लार्ज सबके एक जैसे हैं, किसी के थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। ये है अपना, ये कौन है भाई, इसने क्या बनाया, सिंपल बैरोमीटर। अच्छा, टोरिसेली,
एंड ये बताओ मुझे, मैं दो चीजों को पूछना चाह रहा हूँ। ये अपना ये है फुल मार्क्स। फुल मार्क्स में क्या करते हैं, बहुत कम नोट्स होते हैं, 2 पेज के, बस 2 या 2.5 पेज के, एंड देन दे फोकस ऑन क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, पूरे पूरे क्वेश्चन बैंक है इनका। क्वेश्चन बैंक बाकियों का भी, बट जितना डिटेल क्वेश्चन बैंक फुल मार्क्स का होता है वो इनका नहीं है। और ऐसे ही ओसवाल के अंदर भी क्वेश्चन, ये नोट्स थोड़े कम होते हैं, 2 पेज के नोट्स होते हैं, नो द टर्म्स करके, फिर ये लोग क्वेश्चन पे फोर्स करते हैं। ये सब है, क्वेश्चन 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 लास्ट तक। तो मुझे बताओ, इनमें से अगर देखा जाए, तुम लोगों को अगर पढ़ने के लिए चॉइस दी जाए, चैट बॉक्स में लिख दो मेरे को, तो विच नोट्स विल यू प्रेफर टू like learn and revise? Which notes will you prefer? तो क्लास में पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए? रिवीजन के लिए, जैसे क्लास में तो मैंने समझा दिया पूरा, क्लास में तो मेरे ख्याल से अरिहंत बेस्ट है। यस सर। क्योंकि वो बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं है, बहुत कम डिटेल नहीं है, एनसीईआरटी तो बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे एग्जाम से पहले तुम्हें प्रिपरेशन करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन लर्न करने, क्वेश्चन आंसर, फुल मार्क्स। मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा पर्सनली, फुल मार्क्स एंड ओसवाल। बिल्कुल सही, अर्शा ने बिल्कुल सही बोला है, फुल मार्क्स एंड ये ओसवाल मेरे को लगता है कि बेस्ट है, बहुत सबसे बैलेंस्ड है। चैप्टर समझने के लिए अरिहंत यूज कर ले, कॉन्सेप्ट में क्लास में अरिहंत करता हूँ, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्वेश्चन लर्न करने के लिए, रिवीजन के लिए फुल मार्क्स एंड ओसवाल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट। या full marks in this. I think we have reached the same conclusion. Right, guys? It's time to say goodbye. Tomorrow we meet. Not tomorrow. अभी कंफर्मेशन चाहिए तुम लोगों से, सैटरडे संडे की जो क्लासेस है उसमें क्या रिवीजन करना है, एंड डोंट मिस दोस क्लासेस रिवीजन। ओके, तो मेरे को अभी मैसेज कर दो, सिंस जीनल का एग्जाम है तो उसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बट बाकी लोग भी भेजो मेरे को। मंडे आई विल स्टार्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफिकल्ट चैप्टर बट आई विल ट्राई टू मेक इजी विद ट्रिक्स एंड व्हाटएवर इट इज। ठीक है, मंडे वी स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। चलो, ओके गाइस, बाय बाय फॉर नाउ। बाय सर। चलो, टेक केयर गाइस, गुड नाइट एवरीवन। वंश, बाय सर, अर्ष्या, थैंक यू। प्रभुगुण, बाय Bye, बाय sir. गाइस, बाय 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 बाय। Bye, sir. Thank you. बाय सर। अर्णव, अभिनव, बाय बाय, प्रभुगुण, श्रीका, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, अभिनव, बाय। चलो बाय।